Hello students, today we are going to solve the textbook problem number 1 that from page number 24, that is Daya and Kashma. So I am reading here the problem. See, Daya and Kashma are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:1. Now student, this 1:1 is given to distribute net profit or net loss from the profit and loss in between the partners. See further, from the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. So in this problem we have to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. At the same time we are going to prepare partners capital account also in this problem. So see the trial balance as on 31st March 2019. Debit side of trial balance. See the first one, stock. So this is the opening stock. It always going to post trading debit. Trading debit. Then the next, bills receivable. Bills receivable is current asset, so it goes to balance sheet asset. Now here A stand for asset. So bills receivable goes to balance sheet asset side. Wages and salaries. Wages and salaries trading account debit. We have to show this to trading account debit. Why? Because the first item is wages here. If salary is there and suppose it is salary and wages, then we have to show it to the profit and loss account debit side. But here the first item is wages and it is wages and salaries, so we show it to trading account debit side. Then next, sundry debtor. Sundry debtor is again current asset, so it goes to balance sheet asset side. Sundry debtor again we have to show to balance sheet asset side. Then next, bad debts. Bad debts is a loss, so bad debts we have to show to profit and loss debit. Bad debts, profit and loss debit. Then next, purchases. Purchases always goes to the trading account debit side below the opening stock. Then next, motor car. Motor car is asset, so balance sheet asset side. Then next, machinery. Machinery is again asset, so again we have to show this to balance sheet asset side. Then sales return. Sales return we have to less from sales. Trading credit लेस फ्रॉम सेल्स. सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स में से लेस होगा. डिस्काउंट. नाउ दिस इज डिस्काउंट अलाउड because this is debit side discount, so it goes to the profit and loss account debit side. so डेबिट का डेबिट ऐसे करके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमको इसको लिखना है. Then next, building. Building is asset, so balance sheet asset. Cash at bank. Cash at bank asset. This is current asset, so again balance sheet asset side. Then 10% investment. Investment is again asset, so investment also we have to show to balance sheet asset side. Now look at here. Here they given the rate of it 10%. This
10% shows interest on investment. So student, this is hidden adjustment. तो हमें ये सॉल्व करना है. नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. दिस इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा. हियर इन द ब्रैकेट द गिवन पेड फॉर 9 month. स्टूडेंट, दिस इज अगेन वन हिडन एडजस्टमेंट. देन नेक्स्ट रॉयल्टीज. रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. रॉयल्टीज जो है कहाँ पे पोस्ट होगा? ट्रेडिंग डेबिट. नाउ व्हाट इज रॉयल्टी? रॉयल्टी क्या है? सो रॉयल्टी इज नथिंग बट अ पेमेंट टू द ओनर फॉर द ऑनगोइंग यूज ऑफ देयर असेट और प्रॉपर्टी such as patent, copyright, franchises, etc. Then next, general reserve. General reserve balance sheet liability side. Here L stand for liability. Then capital account. Now student, we are preparing here in this problem partners capital account. So capital goes to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ऐसे करके हम इसको कैपिटल को दिखाएंगे. क्रेडिटर. क्रेडिटर इज करंट लायबिलिटी. सो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. आरडीडी. आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. नाउ you can show this RDD to profit and loss debit also. You can less it from bad debts. आपको अगर करना है तो आप bad debts में से RDD को लेस भी कर सकते हो. बट आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाओगे. सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ सिंपल वे टू शो द RDD. आपको जाके आरडीडी को बैड डेब्ट्स में से लेस करना है या ऐड करना है. अगर क्या करना है, अगर आप भूल रहे हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ये दिस इज़ ओल्ड आरडीडी बिकॉज ये ट्रायल बैलेंस का है, तो ये ओल्ड आरडीडी है. तो इसको क्या करना है, ऐड करना है या लेस करना है बैड डेब्ट्स में. इफ़ यू आर कंफ्यूज देन यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन टू द प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड. आरडीडी को सिंपल वे से प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखा दो तो ये भी चलेगा. क्रेडिट का क्रेडिट करके आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखा सकते हो. तो ये सिंपल वे है टू शो द ओल्ड आरडीडी. देन नेक्स्ट सेल्स. सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट साइड. सेल्स जो है ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा. आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट लायबिलिटी. नाउ मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेजेस में ऐड कर देते हैं इसको बिकॉज दिस इज़ आउटस्टैंडिंग. तो ये नहीं कर रहा है. जैसे ये ट्रायल बैलेंस का आउटस्टैंडिंग है, इसका एक ही इफेक्ट होगा और वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में होगा. परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. परचेस में से लेस करना है. So purchase return trading debit less from purchases. Discount. Discount profit and loss credit side. This is discount received. तो ये कहा जाएगा, कहाँ इसको शो करना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में. सो स्टूडेंट इस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करनी है. तो हमने ऑलरेडी जो है वो पोस्टिंग करके रखी है. यहाँ पे ऑलरेडी हमने ट्रायल बैलेंस की क्या किया है, पोस्टिंग करके रखा है टू सेव माय टाइम. तो अभी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट रीड करेंगे एंड सिर्फ एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स करने वाले हैं. सी द एडजस्टमेंट. फर्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक.
which is a common adjustment. Second, depreciate building and machinery at the rate 5% and 3% respectively. So in this problem बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है. ओके, अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं देन टिक ऑन बिल्डिंग एंड टिक ऑन मशीनरी. सी द थर्ड, bills receivable included dishonored bill of rupees 3000. So dishonored bill is there. Dishonored means on the due date maturity date the firm जो फर्म को बिल का पेमेंट रिसीव्ड नहीं हुआ, सो दिस इज कॉल्ड एज डिसऑनर्ड. देन नेक्स्ट, गुड्स वर्थ रुपीज 1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो पर्सनल यूज आ गया स्टूडेंट तो समझ लो दिस इज ड्राइंग, तो ये ड्राइंग है. देन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, राइट ऑफ 1800 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन सन्ट्री डेटर. तो बैड डेब्ट्स एंड RDD दोनों के जो इफेक्ट है वो सन्ट्री डेटर के ऊपर हो गए. एट द सेम टाइम में जो थर्ड एडजस्टमेंट है बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, इसका भी इफेक्ट कहाँ पे होगा, सन्ट्री डेटर के ऊपर होगा. तो अभी सन्ट्री डेटर के ऊपर 3 एडजस्टमेंट दिख रहे हैं. सीधा 6 नंबर, गुड्स ऑफ रुपीज 6000 वेयर सोल्ड but no entry was made in the books of account. So this is unrecorded sale. इसका भी इफेक्ट सन्ट्री डेटर के ऊपर होता है और सेल के ऊपर होता है. सो स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो ये जो है ये फुल्ली फोकस किसके ऊपर है, फुल्ली फोकस है सन्ट्री डेटर के ऊपर है. सो सन्ट्री डेटर के ऊपर इसके 1 2 3 4 एडजस्टमेंट है. ओके, बिल डिसऑनर्ड भी है, अनरिकॉर्डेड सेल भी है, बैड डेब्ट्स भी है, RDD है, और हमें इसको इसी प्रेफरेंस के साथ सॉल्व करना है. सो व्हेन मल्टीपल एडजस्टमेंट्स ऑन देयर ऑन सन्ड्री डेटर, तो अगर बिल डिसऑनर्ड है तो बिल डिसऑनर्ड को पहले ऐड करो, उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल को ऐड करो, फिर बैड डेब्ट्स आएगा और उसके बाद आएगा RDD. इस तरीके से ही हमें सन्ट्री डेटर के ऊपर इफेक्ट देने हैं इस एडजस्टमेंट के. ठीक है, नाउ सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट के इफेक्ट. फर्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक 40,000. सो वी नो द 2 इफेक्ट ऑफ इट. फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय closing stock. By closing stock, and amount is in outer column, that is 40,000. Okay, and the second effect goes to बैलेंस शीट असेट. सेकंड इफेक्ट इसका बैलेंस शीट के असेट में होता है. सो आई एम राइटिंग हियर क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक 40,000. Okay, see closing stock 40,000 and here also closing stock 40,000. See the second number, depreciate building and machinery at the rate 5% and 3% respectively. So first हम किसे सॉल्व करेंगे, depreciate building. So write here the depreciation. Depreciation means reduction in the value of asset. So depreciation always less from the asset. Depreciation, write the amount below 75,000.
75,000 के ऊपर कितना परसेंट है, 5% इज देयर। तो कैसे कैलकुलेट करना है, 75,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, then we will get the depreciation, and the depreciation is 3,750. So in outer column it is 71,250. तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट हो गया। सी द सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ लॉस। डेप्रिसिएशन क्या है, एक तरीके का लॉस है, दैट इज वाई। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, depreciation on building. Write the amount in outer column, 3,750. So depreciation के इफेक्ट हो गए। नाउ मशीनरी, मशीनरी 3%। मशीनरी भी सेम करना है, जस्ट लाइक बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन किया वैसे ही हमें मशीनरी का डेप्रिसिएशन करना है। सो यहाँ पर भी क्या करना है, लेस फ्रॉम असेट। सो लेस फ्रॉम असेट करेंगे, एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 3%। सो 1,14,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे करेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाता है, दैट इज 3,444। एंड इन आउटर कॉलम लेस करके जो अमाउंट आता है वो आता है 1,11,356। 1,11,356. Now the second effect of it, again profit and loss account डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इसका सेकंड इफेक्ट करेंगे, 2 डेप्रिसिएशन on to depreciation on machinery. Take the amount in outer column, 3,444. ओके, सो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या हुए, सी लेस फ्रॉम असेट, असेट में से लेस किया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया। इस तरीके से डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट किए। सीधा थर्ड नंबर, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3,000। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि टोटल बिल रिसीवेबल इज 28,000, उसमें से 3,000 का आपको पेमेंट मिलने वाला था, रिसीव्ड होने वाला था, बट ऑन द ड्यू डेट यू विल नॉट रिसीव्ड इट। आपको ड्यू डेट पे पेमेंट जो है वो नहीं मिला। ड्यू डेट पे नहीं मिला मतलब कि आपके बिल रिसीवेबल उतने से आपको क्या करने हैं, कम करने हैं। सो लेस डिसऑनर्ड, लेस डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का अमाउंट है 3,000। 28,000 में से आप लेस करो 3,000, आपको आंसर आउटर में मिलेगा 25,000। ओके, तो बिल रिसीवेबल में से डिसऑनर्ड को हमने पहले लेस किया, एंड उसी साइड में असेट में आपको इसको क्या करना है, ऐड करना है, सन्ट्री डेटर में ऐड करना है, सॉरी, उसी साइड में आपको सन्ट्री डेटर में इसको ऐड करना है, ऐड डिसऑनर्ड।
डिसऑनर्ड ऐड क्यों कर रहे हैं सन्ड्री डेटर में? सो क्योंकि आपको ड्यू डेट पे पेमेंट रिसीव्ड नहीं हुआ, बट इन फ्यूचर यू विल रिसीव द मनी। आपको बाद में पैसे मिल सकते हैं ये। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सन्ड्री डेटर क्या हो गया, बढ़ गया उतने से, क्योंकि कस्टमर ने आपका पेमेंट नहीं किया है, बट आपको वो फ्यूचर डेट में आपको वो पेमेंट करेगा। सो आपका क्या बढ़ गया, उतने से सन्ड्री डेटर बढ़ गया। इसके लिए सन्ड्री डेटर में ऐड किया। सो 1,32,500 प्लस 3,000 आउटर में हमें नीचे इनर कॉलम में ही उसका अमाउंट लिखना है, टोटल करके 1,35,500, 1,35,500। ओके, 1,35,500। देन ये आपका डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड के दो इफेक्ट क्या हुए, बिल रिसीवेबल में से लेस हुआ, सन्ड्री डेटर में ऐड हुआ। सी द नेक्स्ट फोर्थ नंबर, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी ये पर्सनल यूज है, दैट मीन्स दिस इज ड्राइंग। ओके, तो ये ड्राइंग है, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे। फर्स्टली कि दया ने गुड्स विड्रॉ किया। सो विड्रॉ किया मतलब गुड्स फर्म में से गया। सो जब भी गुड्स फर्म में से जा रहा है वी हैव टू रिकॉर्ड इट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग के क्रेडिट में हमें उसका रिकॉर्ड करना है। तो हमें पहली एंट्री करनी है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स withdrawn by goods withdrawn by दया। गुड्स विड्रॉन बाय दया ऐसे लिख के आपको इसकी एंट्री ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में करनी है। ओके, तो कितने के गुड्स उसने विड्रॉ किए हैं, 1,000, राइट हियर 1,000 हो गया। गुड्स विड्रॉन बाय दया 1,000। इसका सेकंड डिफेक्ट आपको देना है पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। सो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखो 2। हियर वी कैन राइट ड्राइंग बिकॉज दिस इज एक्चुअली ड्राइंग। तो आपको ड्राइंग लिखना है। एंड दया ने, क्योंकि दया ने विड्रॉ किया, सो यू हैव टू राइट द अमाउंट इन दया कॉलम। आपको दया के कॉलम में इसका अमाउंट लिखना है। ओके, सो सेकंड डिफेक्ट ड्राइंग 1,000। अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया है एंड इफ यू आर शोइंग कैपिटल इन बैलेंस शीट लायबिलिटी, देन यू हैव टू लेस इट फ्रॉम द दयास कैपिटल अकाउंट। आपको ये ड्राइंग कहाँ से लेस करना है, दया के कैपिटल से लेस करना है। अगर हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया है तो हम कहाँ दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में दिखाएंगे। नहीं बनाया है तो कैपिटल में से लेस करो बैलेंस शीट लायबिलिटी में। तो क्या इफेक्ट हो गए देखो, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट बाय गुड्स विड्रॉन बाय दया, एंड सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड टू ड्राइंग। ओके, सी द नेक्स्ट। सो फोर्थ एडजस्टमेंट हो गया। फिफ्थ नंबर, राइट ऑफ 1,800 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। सो ये दोनों भी एडजस्टमेंट सन्ड्री डेटर के ऊपर है, तो इसके लिए हम इसको बाद में करेंगे। पहले हम किस एडजस्टमेंट को अटेम्प्ट करेंगे, 6 नंबर, गुड्स ऑफ ₹6,000 were sold but no entry was made in the books of account, अनरिकॉर्डेड सेल, दिस इज अनरिकॉर्डेड सेल। ये एडजस्टमेंट फर्स्ट करेंगे। गुड्स ऑफ ₹6,000 were sold बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुड्स सोल्ड हुआ 6,000 का, एंट्री हुई है क्या, नहीं, नो एंट्री वॉज मेड।
तो अगर एंट्री नहीं हुई है तो हमें क्या करना है, सिंपली एंट्री करनी है। एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है मतलब क्या करना है, ऐड इन सेल। सेल में क्या करो, ऐड करो, सिंपल। तो सेल में इसको ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड ऐड अनरिकॉर्डेड सेल। ओके, राइट द अमाउंट। अनरिकॉर्डेड सेल की जो अमाउंट है वो लिखो। सी द अमाउंट, अमाउंट इज 6,000। राइट डाउन हियर अनरिकॉर्डेड सेल 6,000। आउटर कॉलम में अभी अमाउंट ले सकते हैं हम लोग। सो 2,83,500 एड अनरिकॉर्डेड सेल। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस किया था, लेस करके इनर कॉलम में ही अमाउंट रखा क्योंकि अनरिकॉर्डेड सेल था। तो 2,83,500 एड 6,000, आउटर कॉलम में अमाउंट आता है 2,89,500, 2,89,500। इस तरीके से इसका अमाउंट आउटर में हो गया। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट ऑन डेटर, रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हमको डेटर में भी ऐड करना है। ये ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके दोनों भी इफेक्ट जो है वो ऐड होते हैं। दोनों इफेक्ट इसके क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000। ओके, तो इसका अमाउंट जो है वो आपको इनर कॉलम में ही रखना है बिकॉज डेटर के ऊपर अभी भी दो एडजस्टमेंट है। सो 1,35,500 प्लस 6,000 करेंगे, अमाउंट आता है 1,41,500, 1,41,500। सो अनरिकॉर्डेड सेल के ये दो इफेक्ट हो गए। सी द नेक्स्ट, राइट ऑफ 1,800 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो पहले क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स करेंगे। सो बैड डेब्ट्स जो है इसका पहला इफेक्ट क्या होता है, सन्ड्री डेटर में से लेस। सो लेस कर दो सन्ड्री डेटर में से इसको लेस। वी कैन कॉल इट न्यू बैड डेब्ट्स। हम इसको क्या कहेंगे, न्यू बैड डेब्ट्स, बिकॉज ये एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट्स है तो इसको हम न्यू बैड डेब्ट्स कहेंगे। सो न्यू बैड डेब्ट्स इज 1,800। लेस करके अमाउंट हमको वापस इनर कॉलम में ही लिखना है। 1,41,500 लेस 1,800, लेस करके अमाउंट आता है 1,39,000। ओके सॉरी, 1,39,700। 1,41,500 लेस 1,800, अमाउंट आता है 1,39,700। ये एक इफेक्ट हो गया लेस का। सेकंड इफेक्ट बैड डेब्ट्स में ऐड करना है, ऐड इन बैड डेब्ट्स। सो न्यू बैड डेब्ट्स जो है वो बैड डेब्ट्स में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। न्यू बैड डेब्ट्स, write the amount in inner column 1,800
एंड इसका टोटल इनर कॉलम पे नीचे लेकर आओ, 1000 प्लस 1800, 2800, इस तरीके से। ओके, सो बैड डेब्ट्स के दो इफेक्ट हो गए। नाउ सी द नेक्स्ट आरडीडी। आरडीडी एट 5% ऑन सन्ट्री डेटर। सो आरडीडी हमें इस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, ऑन 1,39,700। इस अमाउंट पे हमें आरडीडी कैलकुलेट करना है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों सन्ट्री डेटर में पहले डिसऑनर ऐड करो, फिर अनरिकॉर्डेड सेल ऐड करो, फिर न्यू बैड डेब्ट्स टू गेट दिस अमाउंट 1,39,700, क्योंकि हमें इस अमाउंट पे ही आरडीडी कैलकुलेट करना है। सो आरडीडी कितना परसेंट है? सी हियर, आरडीडी इज 5%। सो 1,39,700 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे करके हम इसके ऊपर आरडीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आप आरडीडी कैलकुलेट करते हो तो आरडीडी आपको कितना मिलेगा, और जो भी मिलेगा आपको क्या करना है, लेस करना है न्यू आरडीडी। सो आरडीडी अगर कैलकुलेट करते हो आपको कितना मिलता है, 6,985। एंड आरडीडी को भी बैड डेब्ट्स के जैसे क्या करना है, डेटर में से लेस करना है। नाउ यू कैन टेक द अमाउंट इन आउटर कॉलम, क्योंकि सन्ट्री डेटर के ऊपर सारे एडजस्टमेंट हो गए, तो हम लोग आउटर कॉलम में इसका अमाउंट ले सकते हैं, 1,32,715। ये अमाउंट आती है आउटर कॉलम में इसकी, 139,700 माइनस 6,985, तो अमाउंट आता है 1,32,715। तो इस तरीके से हमको सन्ट्री डेटर मिल गया। ये आरडीडी का एक इफेक्ट है। जस्ट लाइक बैड डेब्ट्स, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा, बैड डेब्ट्स में ऐड करना है, ऐड न्यू आरडीडी। ऐड न्यू आरडीडी। नाउ आरडीडी हमने कितना कैलकुलेट किया, 6,985। सो 2,800 प्लस 6,985 दोनों को ऐड करेंगे तो आउटर कॉलम में आपको अमाउंट मिलता है 9,785। 9,785। तो ये आपका आरडीडी हो गया। तो यहाँ पे देखो हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं। ओके, नाउ हिडन एडजस्टमेंट। सी हियर 10% इन्वेस्टमेंट, दिस इज हिडन एडजस्टमेंट। तो ये जो 10% है डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस का, तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट है। तो 20,000 के ऊपर आपको 10% कैलकुलेट करना है। सो जो भी आएगा वो इंटरेस्ट होगा। एंड इंटरेस्ट ऑलवेज ऐड, इंटरेस्ट जो है वो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो इंटरेस्ट आपको ऐड करना है बैलेंस शीट असेट साइड में इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 20,000 के ऊपर आपको कितना कैलकुलेट करना है, 10%। सो कैलकुलेट करके अमाउंट आता है 2,000। ओके, एंड ऐड करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखो, द अमाउंट इज 22,000। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका फर्स्ट इफेक्ट हो गया। तो ये असेट में इंटरेस्ट है, असेट का इंटरेस्ट। सो दिस इज वन काइंड ऑफ गेन फॉर द फर्म।
तो ये एक तरीके का फर्म का गेन है, और इनकम एंड गेन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते हैं. सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000. ओके, तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के दो इफेक्ट हो गए. हिडन एडजस्टमेंट है पर इजी है. इंटरेस्ट है असेट का है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखो, और इंटरेस्ट ऑलवेज ऐड तो पहले ऐड करो. सीधा सेकंड हिडन एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 month. दिस पेड फॉर 9 month इज हिडन एडजस्टमेंट. सी मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो ईयर है वो 12 month का होता है. अगर आपने 9 month का पे किया है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपको 3 महीने का पेमेंट बाकी है आपका. तो एडवर्टाइजमेंट 3 month का आपका बाकी है, पेमेंट नहीं किया तो बाकी है, मतलब ये क्या है, दिस इज आउटस्टैंडिंग. सो आउटस्टैंडिंग कितने महीने का हो गया, ये 3 month का हो गया. ओके, तो कैसे निकालेंगे 3 month का आउटस्टैंडिंग. सी ईयर 4500 9 month का एडवर्टाइजमेंट है. अगर 4500 9 month का है तो 1 month का कितना होगा, तो 4500 डिवाइडेड बाय 9. अगर ऐसे करेंगे तो आपको आंसर आता है 500. क्या किया, 4500 डिवाइडेड बाय 9, यू विल गेट द आंसर 500. तो 1 month का कितना आ गया, 500. हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है, 3 month का है. तो 3 month का कितना होगा, 500 इंटू 3 कितना होगा, 1500. 1500 आउटस्टैंडिंग आता है. तो ये आउटस्टैंडिंग हमें क्या करना है, आउटस्टैंडिंग भी ऑलवेज ऐड. आउटस्टैंडिंग भी क्या होता है, ऐड होता है. तो आउटस्टैंडिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट में ऐड करना है. आउटस्टैंडिंग, हमने आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट किया 1500. सो आउटर कॉलम में कितना आएगा, 6000. दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट. आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट. take the amount in outer column 1500. चेक करो सही लिखा है क्या, 1500. ओके, राइट है 1500. इस तरीके से हिडन एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट हो गए. तो आपके सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रहे. नाउ वी हैव टू क्लोज द अकाउंट. हमको क्लोज करने अकाउंट. सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट. सो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का आप टोटल करते हो तो ये जो टोटल है ये आता है 3,30,500. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड, और जो बिगर साइड है उसकी हमें टोटल लिखनी है. अगर आप ऐसे देखोगे तभी भी पता चलता है कि ट्रेडिंग इज बिगर देन द डेबिट. ट्रेडिंग की जो टोटल है वो बड़ी टोटल है, तो हमको जो टोटल बड़ी है, जिस साइड की टोटल बड़ी है वो लिखना है हमें, 3,30,500. ओके, तो जो डिफरेंस है वो नेचुरली कहाँ पे आएगा, अभी डिफरेंस डेबिट साइड में आने वाला है. सो डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट. टू ग्रॉस प्रॉफिट. एंड आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है 1,09,000. 1,09,500. ओके, 1,09,500 इज द ग्रॉस प्रॉफिट. ये ग्रॉस प्रॉफिट क्रॉस करके प्रॉफिट एंड लॉस के कहा जाएगा, क्रेडिट में जाएगा. डेबिट का ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाता है.
and we have to write gross profit in outer column. So 1,09,500 ये हमने आउटर कॉलम में लिख लिया. ओके, अभी सी द टोटल ऑफ, अगेन ये एडजस्टमेंट्स हम इसको साइड कर देते हैं. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड भी बड़ी दिख रही है देन द डेबिट साइड. सो डू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो आती है 1,15,100. यही टोटल आपको यहाँ पे डेबिट में भी लेना है. 1,15,100 and whatever difference come to profit and loss debit, we call it net profit. नेट प्रॉफिट. सो अगर आप लेस करते हो तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो मिलेगा. एंड द नेट प्रॉफिट इज 88,621. 88,621. This net profit we have to distribute among the partners. And जो दोनों पार्टनर है वो क्या है, दया एंड द सेकंड इज काशमा. तो दोनों के बीच का जो रेशियो है हमने पढ़ा था 1:1 है, इक्वल है. इसका मतलब है 88,621 डिवाइडेड बाय 2. ऐसे करोगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा. यहाँ पे जो आंसर है वो पॉइंट में आता है, बट आपको पॉइंट में आंसर नहीं लिखना है. ओके, आपको पॉइंट में आंसर नहीं लिखना है. जो आंसर है वो किस तरीके से आएगा, 44,310.5 ऐसे करके आंसर आएगा. पर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है. आपको क्या करना है, राउंड अप करना है. अगर पॉइंट में लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा. तो एक को क्या करेंगे हम 44,311 करेंगे और दूसरे को क्या करेंगे, दूसरे का अमाउंट करेंगे 44,300 10 44,310 इस तरीके से. ओके, तो ओके नेट प्रॉफिट भी इस तरीके से हमको करना है. आ रहा है समझ में आपको? पॉइंट में आंसर आ रहा है तो उसको पॉइंट में मत लिखो, उसको राउंड अप करके करो. अभी ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में आपको कहाँ पे दिखाना है, क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हम ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस से ले रहे हैं, दैट इज़ वाई. तो दया का जो नेट प्रॉफिट है ये है 44,311 एंड कश्मा का जो है वो 44,310. तो इस तरीके से हमने दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया. पार्टनर्स कैपिटल की भी टोटल करेंगे. कश्मा की टोटल सबसे पहले करते हैं. 1,20,000 प्लस 44,310. सो टोटल आता है 1,64,310. ओके, सेम वी हैव टू डू द टोटल ऑफ दया. 1,60,000 प्लस 44,311. तो इसका टोटल आता है 2,04,311. यही टोटल आपको यहाँ पे डेबिट में भी लेना है. Now we have to calculate the difference which is called as
बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन, सो 2,04,311 माइनस 1,000 करके अमाउंट आता है 2,03,000 311 and Kashma as it is 1,64,310। तो इस तरीके से दोनों का ये जो बैलेंस मिल रहा है आपको, ये बैलेंस आपको कहाँ पे लिखना है, बैलेंस शीट में कैपिटल में लिखना है यहाँ पे, दया का एज इट इज़ एंड कश्मा का भी। सो दया का जो है वो 2,03,311 है एंड कश्मा 1,64,310। तो इस तरीके से हमने दोनों का कैपिटल लिख दिया एंड आपको लास्ट फिर बैलेंस शीट की टोटल करनी है जो कि टैली होगी। तो ये जो टोटल है वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। टोटल आती है इसकी 4,82,321 एंड सेम टोटल आपकी एक्चुअली आनी चाहिए लायबिलिटी की भी। सो लायबिलिटी की यहाँ पे टोटल आती है 4,82,321। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। टेक्स्ट बुक का ये प्रॉब्लम नंबर 1 है एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया है किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से इसको फाइनल अकाउंट को टैली करना है। फर्स्टली ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स में, फिर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालो एंड फिर जो बैलेंस आता है वो कैपिटल करके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख के बैलेंस शीट को क्या कर लो, टैली कर लो। सो गो स्टेप बाय स्टेप एंड फाइनल अकाउंट इज़ वेरी इजी। आपको इसमें मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। ओके, बाय।